हेलो एवरीवन, आज हम साइंस वन का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ टुडे 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर. बट अगर हम एक सेंचुरी या 2 सेंचुरी 100 ईयर्स 200 ईयर्स अगर हम पीछे चले जाए तो तब इतने एलिमेंट्स नहीं थे नेचर में. एज वेल एज देयर वर नॉट मेनी वेज टू क्लासीफाई ऑल दोज एलिमेंट्स. जैसे आज हम एलिमेंट्स को हम अलग अलग वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, बट उस टाइम पे एलिमेंट्स ज्यादा पता नहीं थे एंड एज वेल एज एलिमेंट्स को क्लासीफाई भी नहीं कर पाते थे. सो डिफरेंट साइंटिस्ट केम अप विथ डिफरेंट थियोरीज टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासीफाई करना, एक पीरियोडिक टेबल बनाना, इंपॉर्टेंटली एक पूरा पीरियोडिक टेबल क्रिएट करना, दैट वाज the necessity of that time. So many scientists, they came up with their theories to classify elements into to form a periodic table. Elements are the basic block building structures to form compounds, to form mixtures. अगर हम compounds को break down कर दे तो उनसे जो form होने वाला है that are called as the elements. Like oxygen, that is one type of element. Hydrogen ये एक type of element है. अगर oxygen and hydrogen को combine कर दिया, that time it will form water, which is a compound, which is completely transforming its properties. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है एंड वाटर की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है. सो एलिमेंट्स कंबाइन होके इट फॉर्म्स कंपाउंड और इट फॉर्म्स सम अदर मिक्सचर्स. ओके, बट वी विल बी स्टडीइंग दैट हाउ दिस डिफरेंट एलिमेंट्स आर बीइंग क्लासिफाइड. सो फर्स्टली साइंटिस्ट केम अप टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कि कुछ एलिमेंट्स को लेके हम जो मेटालिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं हम उसको मेटल्स के अंदर पुट कर देंगे एंड कुछ एलिमेंट्स को लेके जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे हैं हम वहां पे प्लेस कर देंगे. बट कुछ कुछ एलिमेंट्स थे जो दोनों की प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे थे, दैट इज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. सो एट दैट टाइम देयर वाज एन एम्बिग्यूटी विद द साइंटिस्ट कि हम उसको कहाँ पे प्लेस करें. ओके, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स व्हिच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. सो देन फर्स्ट साइंटिस्ट हु केम अप विद द थ्योरी इन द ईयर 1817 was Johann Daubernier. Okay, first scientist came up with the theory in 1817. Okay, and his theory was he classified or he placed 3 elements in a group in the increasing order of atomic mass. उसने 3 एलिमेंट एक साथ प्लेस किए in the increasing order of atomic mass and उसने ऐसे प्लेस किए that the mean of the first and third element was approximately the mean of the second element. I'll just give you one example for that. Suppose वो 3 elements के atomic masses है, I'll say 2, 4 and 6. This for example, ये एक example है. ये first element है and इसका atomic mass is 2. ये second element है and इसका atomic mass, I'm talking about the atomic mass. The atomic mass is 4 and ये third element है, इसका atomic mass is 6. So if we'll find out the mean of first and third element, अब mean कैसे find out करते हैं हम? First और third element को add कर देंगे 2 plus 6 and mean find out करना है तो divided by 2. So which becomes 8 upon 2, it becomes 4. This was approximately the mean of the middle element. This mean was approximately equal to the mass of the second element. Okay, this was the theory of Johann Daubernier, but his theory was not able to classify all the elements. Therefore his theory failed. ये theory accept नहीं हुई क्योंकि ये scientist सब elements को classify नहीं कर पाया. Therefore his theory failed. The next scientist, second scientist was Newland. So what Newland did, Newland arranged elements in the increasing order of atomic mass. ये भी atomic mass है, Newland ने भी increasing order of atomic masses से ही arrange किया. Newland arranged elements in the increasing order of atomic masses and he concluded that every 8th element showed the property as that of the first one. It can be any property, physical property or chemical property. But every 8th element showed the property as that of the first one. So उसने 8th element को लिया and first element के नीचे place कर दिया. In this way he was able to prepare one group. उसने group forms करना start कर दिया Newland ने. So it's like if you place 7 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अगर 7 elements place कर दिए, 8th element and first element की property same रहेगी. So 8th element लेके first के नीचे place कर दिया. सिमिलरली उसने देखा 9th एंड सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, सो 9th एलिमेंट लेके सेकंड के नीचे प्लेस कर दिया. 10th एलिमेंट एंड थर्ड की प्रॉपर्टी सेम है, 10th एलिमेंट लेके थर्ड के नीचे प्लेस कर दिया. इन दिस वे ही स्टार्टेड टू फॉर्म द ग्रुप्स. जो भी वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स. सो इन दिस वे ही स्टार्टेड टू फॉर्म द ग्रुप्स, बट
हिज थियोरी फेल्ड एट कैल्शियम. जब कैल्शियम ये एलिमेंट आया तो उसके आगे के सब एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर रहे थे. दैट इज कैल्शियम के बाद के सब एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी, दैट इज वो सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं कर रहे थे. देयरफॉर ही वाज नॉट एबल टू प्लेस ऑल द एलिमेंट्स. वो सभी एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर पाया. एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड देयर वर 56 एलिमेंट्स इन नेचर. At the time of Newland, there were 56 elements, but he was not able to classify all the elements, and his theory failed at calcium. Okay, जो first scientist था Daubigny, इसकी theory भी fail हो गई. Second scientist Newland, इसकी theory भी fail हो गई. And he gave this theory is called as Daubigny triad, and this theory is called as Newland's law of octaves. Law of octaves क्यों बोला है? जैसे musical notes रहते हैं, musical सुर रहते हैं, तो उसमें जो 8th सुर है, that is same as that of the first one. जैसे सा रे गा मा प ध नी, एंड अगेन क्या आता है फिर से सा. सो उसने म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया, एंड देयरफॉर ही गिव द नेम एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बट हिज थियोरी फेल्ड. डॉबिनियर ट्राइड, हिज थियोरी आल्सो फेल्ड, क्योंकि सब एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं कर रहे थे. द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज एबल टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स और हु वाज एबल टू प्रिपेयर द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज मेंडलीव. Mendeleev was the first scientist who was able to classify all the elements as well as he was able to prepare the first periodic table. ये जो भी first periodic table है, that was prepared by Mendeleev. Okay, at the time of Mendeleev there were 63 elements. Mendeleev के टाइम पे 63 elements थे नेचर में, and he was the first scientist to classify all the known elements. Now what Mendeleev did, like these two theories, Mendeleev ने भी सेम ही किया. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही प्लेस किया है. जैसे फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, सपोज फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास इज 1, सो ही प्लेस द फर्स्ट एलिमेंट. एटॉमिक मास 2, ही प्लेस द सेकंड एलिमेंट. एटॉमिक मास 3, ही प्लेस द थर्ड एलिमेंट. बट जब उसने देखा कि फोर्थ एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, उसने फोर्थ एलिमेंट को लेके फर्स्ट के नीचे प्लेस कर दिया. देन ही सॉ दैट फिफ्थ एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आर पोजेसिंग द सेम प्रॉपर्टीज, सो फिफ्थ एलिमेंट को सेकंड के नीचे प्लेस कर दिया. अब जो सिक्स्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी इन सबसे अलग है, सो ही कांट प्लेस इट बिलो द थर्ड वन. तो उसने इस प्लेस को वेकेंट रख दिया. ही केप्ट दिस प्लेस वेकेंट एंड उसने सिक्स्थ एलिमेंट इसके बाद प्लेस किया. ओके, सो इन दिस वे मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल. ओके, मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल. अब इसके पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स हैं एंड कुछ डीमेरिट्स हैं. That is some positive points and some negative points. So we'll be learning that merits and demerits, as well as I'll just write the definitions of these Daubigny triad, Newland octaves, as well as the Mendeleev's periodic table. Means आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएंगे concept. सो डॉबर्नियर अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, मतलब 3 के पेयर्स में उसने एलिमेंट्स अरेंज किए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एंड ऐसे अरेंज किए दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately the mean of first and third one. So this is one of the example of Daubigny triad. यहाँ पे 3 elements that is lithium, sodium and potassium, इन तीनों के atomic masses दिए हैं. So atomic mass of sodium is equal to the mean of lithium and potassium. So दोनों को add कर दिया है, and जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हमने दोनों का mean निकाला है, so that is equal to the atomic mass of middle element. ओके, सो जैसे न्यूलैंड की थियोरी के बारे में पहले भी बताया था, ही अरेंज्ड 7 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. सो उसने 8th एलिमेंट लिया एंड फर्स्ट एलिमेंट के नीचे प्लेस कर दिया. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सोडियम का. सो सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम. सो इसलिए सोडियम को लिथियम के नीचे प्लेस कर दिया है, बिकॉज सोडियम एंड लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम है. सो लिमिटेशंस, ड्रॉबैक न्यूलैंड्स ऑक्टेव के, जिस वजह से उसकी थ्योरी फेल हुई. सो जैसे मैंने पहले भी बताया था, न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम. वो कैल्शियम तक ही अपने एलिमेंट्स क्लासीफाई कर पाया था आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट्स. देन सेकेंड थिंग इज ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम बॉक्स. उसने एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को प्लेस किया है, बट वो दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग थी. सो दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे,
उनको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती न्यूलैंड के टेबल में. सो दीज आर द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव. सो मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे. मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वॉज एबल टू क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स. देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ Mendeleev's periodic law. So Mendeleev's periodic law states that atomic mass is the most fundamental property. अगर हमको किसी भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, so atomic mass is the most fundamental property to classify those elements. So Mendeleev's periodic law states that properties of elements are periodic function of the atomic masses. That means atomic mass एक basic fundamental property है जिस वजह से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. This Mendeleev's periodic law is very much important. So merits of Mendeleev's periodic table. So atomic masses of some of the elements were checked. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फिर से चेक किए गए एंड जो भी न्यू एटॉमिक मासेस उनके करेक्ट एटॉमिक मासेस फाइंड हुए थे, अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन वाज गिवन टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. देन सेकंड पॉइंट इज ही केप्ट सम वेकेंट प्लेसेस. मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट प्लेसेस रखे थे एंड उस वेकेंट प्लेसेस पे जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं दैट एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर. एंड मेंडलीव इवन प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स. मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की थी एंड दैट प्रॉपर्टीज वर क्वाइट सिमिलर. When Mendeleev classified the elements, at that time noble gases were not created. So when noble gases were discovered, he created a separate zero group for noble gases. मतलब जो periodic table उसने बनाया था वो कहीं पर भी disturb नहीं हुआ. So demerits or the drawbacks of Mendeleev's periodic table. अब कुछ एलिमेंट्स के atomic mass का whole number was the same. That is, for example, cobalt and nickel both have the atomic masses 58 point something. So which element should come first? As the whole number are same, so which element should come first? That was an ambiguity with Mendeleev. Second point, isotopes were not discovered at the time of Mendeleev. So when isotopes were discovered, where that isotopes should be placed, that was an ambiguity with Mendeleev's periodic table, as isotopes have the different atomic masses. So each element would require different position, but that was not possible to place. Therefore, that ambiguity was there in Mendeleev's periodic table. Third point will be, when elements are arranged in the increasing order of atomic mass, the difference between two elements, the rise between two elements does not seem to be equal. That is, one element will have atomic mass of 19 and the next element will have the atomic mass of 30. So between 19 and 30, how many elements should be placed? That was not clear with Mendeleev. And the fourth point is hydrogen. It resembles two different properties, that is alkali metals as well as halogens. So which position should be given to hydrogen? That was not fixed with Mendeleev. So these are the 4 demerits of Mendeleev's periodic table. Okay, so for homework you have to write all the definitions. जो भी presentation में जितने भी definitions थे वो सब लिखने हैं तुमको one time and send me your homework by today itself. हमने जो भी merits and demerits देखे हैं of Mendeleev's periodic table वो बहुत important है. So while writing, try to understand them properly and then write. Okay? Thank you.